कई बार मैं थोड़ा हंसता हूँ, आपके सामने नहीं हंसता। खास करके टीवी देख रहा होता हूँ और वहां पर जो चीजें दिखाई पड़ती हैं वो अक्सर आप लोगों में भी दिखाई पड़ती हैं। जैसे वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर माने काफी रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी इन द सोसाइटी, मीन्स एजुकेटेड everything. But how people manage, sometimes I surprised. Now he has everywhere written he, in the bracket he has written I. Yesterday I was watching TV little bit. Some doctor left a towel in the stomach. He was operating somebody, but he left the towel in the stomach and TV people were showing how. So the body is I, Ramdas. Surprising events. One of the doctor, patient has cancer. It was a cancer patient and they operated and they treated, they cured his kidney. So there was a big fight. He has cancer and you are treating me. स्वतंत्र है, तुम समझते हो या तुम ध्यान कर रहे हो? You are compelled to meditate, not by anybody else, by yourself. Why you meditate? What is the need of meditation? Go and do whatever you want to do. And when you are going to court, you are a free person. Are you a free person? If you are a free person, why you go to the court? Why you attend the hospital? Why you go to the office? If you think being in the ashram is being a prisoner, then why you go? And what is freedom? It is just an idea in your khopri. If you are a free person, you are a free person in whatsoever the situation is. Not the freedom you translate or you believe in. That is not a freedom. And if you want to be free, first learn how to be a prisoner. Feel that pain. Go through that suffering. And then one day, if you are lucky, you may be free. And then nothing can make you, nobody can put you in the prison. Even in the prison, you are under the sky. Because that sky exists in you, not outside of you. Very fast he understood, Venugopal, that he is doing something wrong. And when he told me, Gurudev, take it,
He was so loaded with something. So I made him free. I took your farm, which is worth more than 1 crore rupee, and I freed you. But again, you became the prisoner of your own, whatsoever it is. Only a master is capable to free you. You go on doing your things. Venugopal is just an excuse. I am talking to all of you because you all are in some way Venugopal. Everyone. When Pratik offered me that he will buy the land, he started saying to Venugopal that he will not will live in the commune. He will buy nearby some land, make his house, and will live there. Same thinking. You think I need to be a prisoner and I need a ashram for myself? You are already prisoner because you are in the body. That is the real prison. You are already a prisoner because you are in the mind. That is the prison. When you are out of the mind, out of the body, only then you are a free person. That is what the teaching is, that you are not the body. You believe that you are the body. It is a belief. People told you that you are born. Have you ever witnessed that you are taking birth? Anybody? How you can say you are born? What were before you were born? How you can say? Is there an evidence, any witness, any logic, any reason, anything, any proof that you are born? But you believe that you are born, and every year you celebrate your birthday. मनाते हो कि नहीं? किस बात का बर्थडे बना रहे हो? कौन जन्मा है? और कैसे तुम जानते हो कि तुम जन्मे हो? किसी ने कह दिया और तुमने मान लिया। ऐसे ही तुमने मान लिया है कि तुम ये देह हो। यही तुम्हारा बंधन है, यही तुम्हारी कैद है, यही तुम्हारी जेल है, यही तुम्हारी समस्या है, यही तुम्हारी पीड़ा है, यही तुम्हारा संताप है। और इसी से तुम मुक्त होना चाहते हो, लेकिन सारे उपाय जो करते हो वो गलत है। एक लड़की को लगता है कि कल बॉयफ्रेंड मिल गया तो बस मजा आ जाएगा। उसको पता नहीं कि वो और संकरी कोठरी में प्रवेश कर रही है। उसको लगता है बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए। अरे तुम्हारे अपने भीतर तो इतनी जगह है नहीं जहां तुम रह रहे हो, इतना टाइट महसूस करते हो, बॉयफ्रेंड को और ले आते हो। सिंगल बेड का डबल बेड करना पड़ता है। तुम्हारे अपने भीतर अपने लिए पर्याप्त स्पेस नहीं है और दूसरे की खोज कर रहे हो। तुम अपने को झेल नहीं पाते, धन इकट्ठा कर लेते हो। क्या इकट्ठा नहीं करते, और रोज उसके नीचे और दबते जाते हो, और दबते जाते हो, और कमजोर होते जाते हो, और कमजोर होते जाते हो। और फिर भी अकड़ यह है कि वाई टू बिकम ए प्रिजनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देन योर इंटेंशन इज टू मेक मी योर प्रिजनर। और करुणा देखो, ये गुरु की करुणा होती है कि वो शिष्य के मंगल के लिए, शिष्य की स्वतंत्रता के लिए उसके साथ ही जेल में रहने लगता है। अभी आप इतने लोग, 50 लोग यहां पर, मैं खिड़की खुली करके नहीं बैठ सकता। बैठ सकता हूं, लेकिन ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? और तुम रहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
अगर फर्क पड़ता होता तो तुम्हें बुलाता ही नहीं। स्वतंत्रता कोई बाह्य वस्तु नहीं है, वो भीतरी वस्तु है। यही जो हमारी गलत सोच है, ऊपर नीचे घूमते ही रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मेरी कोई वासना नहीं है कि आश्रम बनाऊं, मेरी कोई जरूरत नहीं है कि मैं आश्रम बनाऊं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आश्रम बना, बाय द वे, परमात्मा की अगर मर्जी हो तो मैं ना नहीं कर सकता। परमात्मा की अगर मर्जी ना हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। एक सीधी सी बात समझ लो, अगर आश्रम अब तक नहीं बना, अभी मैं 65 साल का हो गया, सीनियर सिटीजन, प्रताप सिन्हा ने मेरे को सीनियर सिटीजन बना दिया इस साल। 65 साल में कैंप शुरू किया मैंने 74 से। ओशो ने मेरे को 70, ओशो को मैं मिला 69 में। 71 में उन्होंने मेरे को पब्लिक काम में लगा दिया, कीर्तन मंडली बना दी, एक म्यूजिक ग्रुप, और कहा कि पूरा भारत घूमो और जा जाके कीर्तन करो, मेरी किताबें बेचो, मेरा नाम फैलाओ, मेरा संदेश दो। और मैं चल पड़ा, 10 यंग लड़के लड़कियां मेरे साथ। 71 से तो कितने साल हो गए, 2007 तक कितने साल हो गए हैं? 36। 36 साल हो गए पब्लिक वर्क करते हुए। 74 से सिर्फ कैंप कर रहा हूं, तो कितने साल हो गए? 33। Since 33 years I am conducting meditation camp. ओशो को विदा हुए 17 साल हो गए, 90 में गए। इन 17 सालों में बहुत प्रयास किए गए, मेरी ओर से नहीं, मेरे मित्रों की ओर से। आश्रम 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 आश्रम, उनको बनाओ, जगह ढूंढो, जगह देखो। कभी ये घटना घटी नहीं 17 साल में। इसका एक सीधा सा अर्थ है, मेरी मर्जी तो थी ही नहीं, परमात्मा की मर्जी भी नहीं थी, तो बात मेल खा गई। अब परमात्मा की मर्जी होती और मेरी मर्जी नहीं होती तो संघर्ष होता। समझ आई ना? संघर्ष नहीं हुआ, बस नहीं घटी घटना सो नहीं घटी। अब घटना कुछ घटने लगी तो घटने लगी, इसका मतलब परमात्मा की मर्जी है। तो परमात्मा की मर्जी के अगेंस्ट मैं कैसे जा सकता हूं? यही तो स्वतंत्रता है। अब ये समझना बड़ा कठिन है कि परमात्मा की मर्जी ही मेरी मर्जी है, मेरी अलग से कोई मर्जी नहीं है। तुम सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जो कि परमात्मा की मर्जी नहीं है। इसलिए तुम्हारे जीवन में इतना दुख है, संताप है, इसलिए यहां बैठे हो। अगर तुम्हारी मर्जी और परमात्मा की मर्जी एक होती तो बात कुछ अलग होती। अब क्या तुम्हारे पास नहीं है? यहां पर प्रतीक स्वामी बैठे हैं, उनके पास सब कुछ है। क्या चाहिए होता है? अच्छा घर चाहिए होता है, वो उनके पास है। पैसा होता है, वो उनके पास है। समाज में एक अच्छा रेस्पेक्टफुल व्यक्ति माना जाए, वो उनके पास है। सब कुछ तो है उनके पास, लेकिन ध्यान की यात्रा पर निकल पड़े। जब से ओशो को पढ़ना शुरू किया, सब चीज फीकी पड़ती गई, फीकी पड़ती गई, फीकी पड़ती गई। ऐसी ध्यान की लगन लगी कि कहीं भी ध्यान शिविर हो रहा होता है वो पहुंच जाते हैं, दिल्ली चले आते हैं, दीव चले आते हैं। ध्यान की लगन लग गई, बाकी सब चीजें फीकी होने लगी। अब तुम व्याख्या जैसे मर्जी करो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं, मैं फलान हूं, मैं ढिकान हूं। तुम जानते कहां हो भाई? कहां जानते हो? यही तो अहंकार का खेल है
जो समझ में नहीं आता, जो हर वक्त जस्टिफाई कर लेता है, रैशनलाइज कर लेता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, अपने सहारे खड़े कर लेता है, एंड दे आर क्वाइट फाइन। इसमें कुछ भूल नहीं है, अगर तुमको अच्छे लगते हैं तो ठीक है। कोई कौन होता है कहने वाला, मैं कौन होता हूं? कोई नहीं होता। इफ यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, द वे यू आर, and whatsoever you are doing, it is totally fine. But you know very well somewhere deep down that things are not proper, things should be proper, and you go on searching knowingly, unknowingly. That is why you are sitting here. You cannot cheat me. I am just a pure mirror. How you are reflected in me, I can tell you, but I cannot change you. I cannot dominate you. I cannot motivate you. I cannot give you any direction unless and until you also cooperate and see the same. हो जाए? बात समझ आ रही है बात के नहीं? तुम्हारी संभावना तुम्हें पता नहीं है। अभी ये प्रकाश है, खबर आ जाती है कि गुरुदेव से मिलना है। मैं कहता हूँ अच्छा बुलाओ, तुरंत बुला लेता हूँ मैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन वेट भी नहीं करवाता, तुरंत बुला लेता हूँ। कल मैं आपको बात बता रहा था जाजेन की। उनका नाम था अजीज। 2,500 रुपया वो पूना के कैंप में लेते थे। माने 5-6 दिन का कैंप होता था, 12-15 हज़ार रुपये फीस होती थी। और क्या करवाते थे? सिर्फ जैन ध्यान करवाते थे, 4 या 5 टाइम अलग अलग। सुबह किया, फिर नाश्ता किया, फिर लंच किया, फिर थोड़ी चाय वाय पी, फिर किया। बस 1.5-2 घंटे बस बैठे रहना, ये वो ध्यान करवाता था। जब साधक उनसे मिलने जाते थे तो 2,500-3,000-5,000 रुपया फीस लेते थे। इफ यू वांट टू सी हिम, ही विल चार्ज यू। उन्होंने फिर वो भी बंद कर दिया बाद में। वो कहते थे कि जिसको मैं बुलाऊंगा वही मिलने आएगा। पूरे गेट ही बंद कर दिया। और अभी कई सालों से वो गायब हो गए हैं। इजराइल में उनके बहुत कैंप होते थे, फिर जापान में कैंप होते थे वो पोलैंड के, वो स्वयं पोलैंड के थे। बहुत दूर रखते थे। कैंप किया 5-6 दिन, 1-2 बार थोड़ी सी चर्चा करते थे, टॉक करते थे। वो खुद बोलते जाते थे, जो वो बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, कोई प्रश्न आप नहीं करते। प्रश्न भी अलाउड नहीं है। यंग थे, मेरे से उम्र में छोटे हैं, 20 साल छोटे होंगे करीब करीब। जो जापान वगैरह में कैंप होता था उसकी फीस तो बहुत भारी थी। कैंप 6-7 दिन का होता था, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होता। 5 से 7 दिन का कैंप, मैंने 5 से 7 दिन के कैंप में पूरी दुनिया से जापान में लोग आ रहे हैं, और लोगों को मजा आता था उनके साथ। हालांकि बड़ी हार्डशिप थी। उनका पूरा कैंप डूअर बेस होता है, विल पर आधार। आपको बहुत मजा आता उनके साथ, एकदम जम जाते हैं आपको। मेरे साथ पटरी बिठाने में आपको काफी टाइम लगेगा। मैं डूअर टाइप नहीं हूं, नॉन डूअर टाइप। दो ही टाइप होते हैं, एक भक्ति का होता है, समर्पण का मार्ग होता है, भक्ति का होता है, डिवोशन का होता है। दूसरा विल का होता है, संकल्प का होता है कि मैं करूंगा, मेरे हाथ में है। परमात्मा की ऐसी की तैसी एक दिन पकड़ के रहूंगा उसको, हो जाए।
भक्त कहता है यार तू पता नहीं कहाँ छिपा फिरता है, जब तेरी मर्जी हो मिलना, चाहे जैसे रख मैं वैसे रहता हूँ, अच्छा मैं तेरे को समर्पण करता हूँ, तेरे को दुखी करना है दुखी कर, सुखी करना है सुखी कर, वो छोड़ ही देता है। जब भक्ति अपने पीक पे पहुंचती है तो समर्पण घटित हो जाता है। समर्पण का मतलब है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। हमें दोनों है पसंद, तेरी धूप और छांव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे डुबा दे बीच मझधार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। ये भक्ति का मार्ग है। सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, जैसे भी रखे मालिक वैसे रह लेंगे हम, चाहे खुशी भरा संसार, यादे आंसू का तू हार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। मैंने इस मार्ग से यात्रा की है। जिस मार्ग से व्यक्ति स्वयं यात्रा करके पहुंचता है, उसका जोर उसी मार्ग पे होता है। इसलिए मेरे निकट वही लोग टिक सकते हैं जो भक्ति भाव वाले हैं। भक्ति में भी बहुत अशुद्धि होती है, तुम छोड़ नहीं पाते। अभी कल परसों मैंने पत्र पढ़ा, उसमें एक लाइन थी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये दिखाई पड़ता, लेकिन फिर भी आदमी छोड़ता नहीं। मनमोहन जी, कुल इतनी समस्या है आपकी, कुल जो समस्या आपकी है वो भक्ति भाव की चालू हो गई, लेकिन अहंकार इतना डरा हुआ है, भागा फिर रहा है भागा फिर रहा है भागा फिर रहा है। अरे कहां भागोगे भाई, जहां भी भागोगे तुम तो रहोगे ना, और तुम ही तो समस्या हो। अब ये जिस दिन घटना घट जाए, जिस दिन हेल्पलेस हो जाओ, स्वीकार कर लो, बात खत्म। जैसे ही स्वीकार भाव घटा, पीड़ाएं होंगी, कष्ट होंगे, दुख होंगे, लेकिन तुम नर्वस नहीं होगे, डिप्रेस नहीं होगे। डिप्रेशन आता है, नर्वसनेस आती है, क्योंकि संघर्ष चलता है। तुम कुछ और चाहते हो, परमात्मा कुछ और चाहता है। जो परमात्मा चाहता है वो तुमको मजा नहीं आता उसमें, जो तुम मजा लेना चाहते हो वो परमात्मा देना नहीं चाहता। अब तुम बड़े के परमात्मा बड़ा, ये तुम तय कर लो। अगर तुम परमात्मा के संग संग चलो तो कोई पीड़ा ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं। प्रकाश की मैं बात कर रहा था, मैं जब आने देता हूं तो मेरे मन में यह ख्याल होता है कि कोई आपकी समस्या है, कोई आपकी उलझन है, कोई बात प्राइवेट है, कोई प्रश्न है। प्रश्न नहीं होता, वो जब भी मेरे पास मिल जाए उस अपनी आके बकवास चालू कर देगा, कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं, मेरे को ये होता है, मेरे को वो होता है, मैं कभी किसी के पाँव नहीं छू। ये सब बताने की क्या जरूरत है भाई, और वो भी गुरुदेव को, और तेरे को कोई नहीं मिला, इसलिए तेरे को कोई बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि तू बक बक करता रहता है हर वक्त, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। ये जिब्रिश है, तो जिब्रिश कर लिया करना सीधी, जिब्रिश, जिब्रिश में चुप बैठा रहेगा। अभी जब भी डांस का वक्त होता है ना, वो इधर उधर देख देख रहा होता है, डांस नहीं करता। इस मायने में ये जो मैसूर के लोग हैं, मैं इतना खुश हूं इनकी लगन देख के, इनकी आस्था देख के, इनकी टोटलिटी। ओशो ने अगर तुम लोगों को देखा होता, ये अपना गिरधर बैठा है, ये हांजी बैठा है, इधर वो रवि सूर्या बैठा है, वो गोपीनाथ मुंडे बैठा है, दीपक है, बाबू भाई है, ये अपने वेणुगोपाल जी हैं। ओशो ने अगर ये सब ग्रुप देखा होता, इतने खुश होते मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो जिस टोटलिटी की बात करते थे, जब आप ध्यान करते हो तो वो टोटलिटी वहां होती है। यू आर वेरी टोटल। अब ये होता है, पता नहीं कहां कहां इसका चित्त घूमता रहता है, फिर कभी इसको देखेगा, कभी उसको देखेगा, कभी गोल गोल घूमने लगेगा। बिखरा हुआ है चित्त,
व्यक्ति सरल है, बड़ी संभावना लिए हुए है, इनसाइट उसके पास है। मजे की बात यह है कि कोई कोना है जो बहुत जगमग है, प्रदीप्त है, उजाला है वहां पर, लेकिन बाकी कोने में इतना अंधेरा है कि तुम उसको भर भर के बोरे अगर तुम बाहर फेंको तो खत्म ना हो। लेकिन वेट करनी पड़ती है कि धीरे 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 व्यक्ति निकट आए, प्रेम बढ़े, आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े, और तब उससे वो बातें कही जा सकें जो उसके हित में, और वो धीरे धीरे उनको एडाप्ट कर ले। ये कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं है, लादेन जैसा काम नहीं कि बम फेंक दिया। यहां पर महीनों, सालों गुरु को तुम्हारे साथ चलना पड़ता है, लेकिन गुरु इस आशा में तुम्हारे साथ चलता है कि एक दिन तुम उसके साथ चल सको, उसके लिए नहीं, अपने लिए। आदमी की मुसीबत यह है कि उसको लगता है अपने लिए तो वो सब जानता है कि क्या ठीक है, लेकिन ये ख्याल है, ये भ्रम है। तुम आए, अब बाबू भाई यहाँ बैठे होते, आज क्यों पीछे बैठे पता नहीं, वो यहाँ बैठते हैं, रोज मेरे पांव छूते हैं, और जब भी उनका एसएमएस आया है तो हिज होलीनेस, हिज डिवाइन फीट, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो ये जानते नहीं कि ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि वो मेरे पांव क्यों छू रहे हैं। 5-7 लोग पांव छूते हैं, बाकी तो नहीं छूते। 5-7 लोग रोज पांव छूते हैं शाम को, वो भी मैं बंद करने वाला हूँ। अब वो फेस आने वाला है कि किसी को अगर सच में मेरे पांव छूने हैं तो आई विल चार्ज यू। उसे संदेश चला जाएगा ऑटोमेटिकली, वो वहीं से प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि काम अब बढ़ेगा, बड़ा काम होगा, डीप काम होगा, और गहरे जाएंगे, तो नियम बदलते चले जाते हैं। तब आपको लगेगा कि गुरुदेव आप तो बड़े अकड़ गए, अब आश्रम बन गया, अब ये अब तो मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, दर्शन भी नहीं देते। पर अगर गहरा काम करना है, बड़ा काम करना है, तो कुछ दूरी बनानी पड़ेगी। सब चीज एक ढंग से नहीं होती, नियम बदल जाता है। अभी तुम यहां पर बैठे हो इस कमरे में, नियम अलग है। जैसे तुम सड़क पे जाते हो नियम बदल जाता है कि नहीं जाता। अब तुम ठीक बीचों बीच चलोगे तो क्या होगा, कोई आके मार देगा। कार में बैठे हो नियम बदल जाता है, ट्रेन में बैठे हो नियम बदल जाता है, हवाई जहाज से उड़ते हो नियम बदल जाता है, बदल जाता है। दुनिया वही की वही है, तुम भी वही के वही हो, लेकिन नियम बदल जाता है। नियम बदलना पड़ेगा। वो आया, फिर एक, अच्छा एक प्रश्न पूछता हूँ, फिर एक कहानी कह दी, फिर एक और, मन के जाओ, बस पूछने को नहीं होता, कहने को होता है। और वो जिस ढंग से बोलता है बेसिर पैर का, इसलिए उसको कोई पसंद नहीं करता। और तेरे को मैंने जानबूझ के मनमोहन के साथ रखा था, एक अनुभव देने के लिए, कि तूने अगर उसको भाषण सुनाया तो वो भी तेरे को भाषण सुनाएगा फिर, और उसके भाषण में फिर दम होता है, उसकी बात फिर एड्रेस्ड होती है, उसका कोई अर्थ होता है। तू तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, 5-6 साल का, पापा पापा कुछ भी बोलता जाता है, ऐसे बच्चा है। ही इज वेरी इनोसेंट फेलो, आई लव हिम डीप डाउन, ही नोज इट। लेकिन उस पर बहुत काम करना पड़ेगा, और उसको अपने पर बहुत काम करना पड़ेगा। और उसने, अभी ये दूसरा या तीसरा कैंप है, बेंगलोर कैंप में पहली बार आया, फिर वहां पर आ गया, वहां पर भी उसके लिए जगह नहीं थी।
बेंदूर के कैंप में लास्ट लास्ट में मुश्किल उसको एंट्री मिली। ऐसा नहीं कि मैं उसको लेना नहीं चाहता था, ऐसा नहीं है। और सब बेटे तेरे जैसे होते हैं, डिग्री का फर्क होता है। तेरी डिग्री हो सकता है 70 हो, किसी की 5-7 हो, 10 हो, 15 हो, 20, सब वही होता है। तू ऐसा मत समझ कि तू स्पेशल है और मैं कोई तेरी निंदा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और तेरे बहाने सबको सुना रहा हूँ, मेरी बात सबके लिए कॉमन होती है। तुम ऐसा मत समझना कि तुम वैसे नहीं हो, तुम कुछ ज्यादा स्पेशल हो। कोई 0 डिग्री पर भी हो सकता है, और मैं हर चीज को 100 डिग्री में देखता हूं। मैं सीधा छोटा मोटा डिवीजन नहीं करता, 100 में डिवाइड करता हूं। अब बाबू भाई हैं, बड़ी श्रद्धा से पहुंचते, इसका एक सीधा सा मतलब है कि इस व्यक्ति में कोई गहरी प्यास है, कोई गहरी खोज है। लेकिन सवाल ये कि मैं तो चलूंगा साथ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और चलोगे तो कितना चलोगे? और बीच में तुम एचम कैच करने लगते हो, डाइवर्शन मारने लगते हो, रिएक्ट करने लगते हो, कुछ का कुछ करने लगते हो। इधर से मेरे को इन्होंने जमीन दी, उधर से उनका प्रोसेस चालू हो गया। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहें कि गुरुदेव मेरे को एक छोटा सा टुकड़ा दे देना, मैं वहां पर अलग से रहूंगा। कभी कहें मैं साथ नहीं रहूंगा। अब इसमें ये बात आ गई, वो लिखते हैं, वाई वन वांट्स टू बिकम प्रिजनर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। प्रिजन भी स्वतंत्रता दिला सकती है। ये डिपेंड करता है तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। और अगर तुम प्रिजनर नहीं होना चाहते तो तुम्हें कभी स्वतंत्रता मिलेगी नहीं। ठीक से प्रिजनर हो जाओ। खुद ही वेणु जो है ना, गीत लिखते हैं, धूल हो जा गुरु के चरण की। और कौन मिल जाएगा? वो गाना उन्हीं को आता है, इसमें है। विपरीत विपरीत बात चलती रहती है। कभी लगता है मैं कैदी हो जाऊंगा, कभी लगता है कि गुरु चरणों की धूल हो जाऊं, माने पूरी तरह से मिट जाऊं। गुरुदेव जो कहें वही सच हो, वो जो कहें वही करूं और कुछ भी ना करूं, मेरी मर्जी चले ही ना। ये दोनों भावनाएं पूरी अति पे जोरों से बहती हैं। इधर ढूंढ, इधर बैठ के, यहां से ढूंढ, तू दो, यहीं कहीं होगा, तीसरे चौथे पेज पे। Why one wants to become prisoner of an institution। देखिए उनका, गुरुदेव हार्ट हेयर लविंग सिंगिंग, हृदय प्रेम से भरा हुआ है और गा रहा है। क्या गा रहा है? खाक हो गुरु के कदम की तो प्रभु मिल जाएगा। कहीं ना कहीं खुद को दिखाई पड़ रहा है कि गुरु के कदमों की खाक हो जाओ, धूल हो जाओ। और कोई गुरु ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें कदमों से दबा देता हो। तुम अपने सिर को गुरु के कदमों में रखते हो, गुरु तुम्हें अपने हृदय में बिठा लेता है। और आज पूछना जाके कि मेरे हृदय में वो है या नहीं, ऐसा उनको महसूस होता है कि नहीं होता? वो मेरे हृदय में है, और जिस दिन से देखा उस दिन प्रवेश कर गए। अब तुम हृदय से निकल निकल के भाग जाते हो तो जाओ। और चूंकि मैंने तुम्हें प्रेम किया है, अब ये किया है, ये सारी शब्दावली ऐसी होती है, तुम्हें स्वीकार किया है, तुम्हें अपने भीतर ले लिया है, तो तुम बाहर जाओ के अंदर जाओ, के आओ के जाओ, के ना आओ, के सिर के बल खड़े हो, के पाँव के बल खड़े हो, अब जो भी तुम्हें करना हो। और वेणुगोपाल इस बात का साक्षी है कि जो मैं कह रहा हूं इसमें कुछ गलती नहीं है।
और अगर गलती है तो मुझे कहना, लिखना, दोपहर को फिर चर्चा करूंगा। वो गुरु थोड़ी होता है जो तुम्हें खाक बना दे। गुरु तो तुम में पूरा परमात्मा देखता है छिपा हुआ, और तुम्हें धीरे धीरे बताता है भी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने को मान क्या रहे हो। तुम जो अपने को मान रहे हो बहुत घटिया शिट। अब ये सारे उनके शब्द हैं यहां पर, देखना इधर जरा। आई एम लाइक ए शिट, आई एम नॉट वर्दी, आई एम दिस। लेकिन मैंने उनको नहीं कहा कि यू आर ए शिट। तुम अपने आप को समय समय पर या तो शिट बना लेते हो, या तो पता नहीं लादेन बना लेते हो, क्या बना लेते हो, आई डोंट नो। पर जो भी तुम समझते हो अपने बारे में वो तुम्हारी सिर्फ धारणा है, वो गलत है। ये सब बातें इतनी ठोक बजा के मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या था और मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया और क्या बना दिया। ये कोई मैं अपने से बोल रहा हूं क्या? अगर मेरा गुरु मेरे साथ नहीं होता, ओशो मेरे पीछे नहीं होते, मैं ओशो के आगे बैठता हूं, पीछे नहीं। छोटा बच्चा मां की बाप की गोदी में बैठता है, बाप का साया, उसकी कृपा, उसका प्रोटेक्शन हर वक्त बना रहे। आई फील ऑलवेज प्रोटेक्टेड। जब मैं कीर्तन करता था सड़कों पे तो लोग पत्थर फेंकते थे, कभी भी मुझे एक पत्थर नहीं लगा। ये अनुभव है कि वो मेरे साथ है। मैं पूरा सुरक्षित हूं, मुझे कभी कोई भय लगा ही नहीं, भयभीत हुआ ही नहीं। उन्होंने मेरे भीतर जो देखा और जगाया, अब मैं जो मेरे भीतर देखता हूं तुम्हारी छवि को, तो मैं उस छवि से संबंधित होता हूं। वेणुगोपाल जो अपने आप को समझता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वेणुगोपाल के भीतर कौन है और क्या है और कैसे प्रकट हो सकता है, उससे मेरा लेना देना है। तुम आके चरण छू के चले जाओ, इसको एक प्रक्रिया बना लो, एक प्रोसेस बना लो, लेकिन तुमको पता नहीं कि तुम कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दे रहे हो। अनसेड, अनडॉक्यूमेंटेड, तुम्हारे पांव छूते ही मेरा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। लेकिन ये काम ऐसा है कि मैं जरा भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये काम ऐसा है कि अगर तुम्हारा कोऑपरेशन नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, अगर तुम ग्रो करना चाहते हो, अगर मैच्योर होना चाहते हो, तो यू हैव टू जस्ट कोऑपरेट, नथिंग एल्स, नथिंग मोर इज नीडेड। पर तुम अपनी कल्पना में पता नहीं कहां कहां घूमते हो, क्या क्या भय खाते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो। अभी ये भोला बैठा है, मनमोहन बैठा है, भक्ति भाव आया हुआ है, मैंने आने से मना किया कि मैं तेरे को कैंप खत्म होने के बाद मिलूंगा। ये पुराने ग्रुप में 3 लोग बैठे। अभी जो आगे की यात्रा शुरू होने वाली है, अभी इन्होंने मान लिया कि बस गुरुदेव कैंप करते हैं, बस वो कैंप में पीछे भी आते रहे, अब भी आएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि अब वो वक्त आ रहा है जहां से टर्न होगा, और अगर तुम ना चल पाए साथ तो फिर पीछे छूट जाओगे। भले गालियां देना, वो गालियां दोगे, और मैं तो तुम 5-10 गाली की बात करते हो, मैं तो कहता हूं 500-1000 दो, नो प्रॉब्लम। तुम अगर गाली दे के हल्के होते हो और तुम्हारा बोझ हल्का होता है और तुम लाइट हो जाते हो और तुम वापस अच्छी स्पेस में आ जाते हो, 2 गाली। क्योंकि जिसको तुम चैतन्य भारती समझते हो वो चैतन्य भारती है ही नहीं,
और गाली तो तुम चैतन्य भारती को दे रहे हो ना, मुझे नहीं दे सकते तुम गाली। तुम मुझे जानते कहां हो कि मैं कौन हूं? जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वो मुझे क्या जानेगा? जो तुम अपने को मानते हो एक देह, वैसी देह तुम यहां पर देखते हो, वो कब की जा चुकी। अब इस देह से उसका कोई नाता नहीं है। तुम्हारी गाली का कोई प्रभाव नहीं, तुम्हारे पांव छूने का भी कोई प्रभाव नहीं। तुम्हारे पांव छूने से मैं बड़ा नहीं होता और ना छूने से मैं छोटा नहीं होता। तुम्हें पांव इसलिए छूने देता हूं कि तुमको अच्छा लगता है। तुम निर्भर होते हो, तुम ऊपर उठते हो, तुम फैलते हो, क्योंकि श्रद्धा, समर्पण, भक्ति ये खिलाती है तुम्हें। मैं तो जो हूं सो हूं, ना तो बड़ा हूं ना तो छोटा हूं, कोई कंपैरिजन नहीं है। वेणुगोपाल ने मेरे को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। दो चार पढ़ो और Gurudev, please bless that until these conflicts claim individuality, personality exist, until ego completely disappear in you. I won't be out of you. It is not in my hand as I is helpless, orphan. You only can decide. बहुत तेजी से वेणु ने गति की है, मेरी कल्पना के बाहर। मेरी बातों को सुन के, समझ के, पी के, जी के वो फंस जाता है, लेकिन इतनी जल्दी बाहर आता है, मेरी अपनी कल्पना के बाहर होता है। कईयों को लगता होगा कि मैं वेणु को इतनी महत्ता क्यों दे रहा हूं, वेणुगोपाल 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 कर रहा हूं। ही इज वर्दी ऑफ इट, ही डिजर्व्ड इट ऑलरेडी, ही अर्नड इट, एंड व्हाई नॉट, आई एम नॉट ए माइजर। अगर मैं प्रकाश को कह सकता हूं कि बकवास मारता रहता है, तो मैं उसको कह सकता हूं, मेरे को कोई संकोच नहीं और मैं बहुत डायरेक्ट हूं। मैं कोई मीठी मीठी बातें नहीं करता, मैं कोई मक्खन नहीं लगाता तुमको, और जब निंदा भी करता हूं तो वो भी 24 कैरेट की होती है, और तुम्हारे भले के लिए होती है, मेरे प्रेम से आती है, और ये तुम समझते हो। तुम्हारा कोई गुण होगा तो मैं उसकी उतनी ही प्रशंसा करता हुआ मिलूंगा जितने तुम्हारे दुर्गुण की, और वो तुम मेरे तार तुम छेड़ते हो। मेरी ओर से तो मैं शांत हूं। प्रभु on 26th of March 2007, 9:25 a.m. Never allow me to do anything. Whatever I do is nothing but shit. False, ugly, blind, foolish. You decide, please. Give strength just to follow you. And I am giving strength. And what is my strength? I accept you as you are. You see yourself shit, not me. I see gold, pure gold. 24%, 24%, 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट, 100% प्योर, not even 99.9. I am so lucky that there are more people in the line like Venugopal. I am lucky and I feel great whether I have earned it to have people like this.
simple people, hearty people, total people. I am really amazed. Not that they don't have drawbacks, they don't have ego, or they are not unconscious. Everything is there, no problem. अगर वो मेरे साथ चले तो उनको ही नहीं मेरे को भी मजा आएगा. Gurudev, I wish to be away from situation, person, place just to see that there is no feeding for ego until I am stabilized, so that ego disappears once for all. You say, in disappearance of I, only real communication is possible, but also understood that whatever doing under your guidance is not doing at all. वो सारी बातों को कैसे ठीक ठीक ट्रांसलेट कर लेता है, ये मेरे आश्चर्य का विषय. क्यों? मनीष मेरे साथ कितने साल से, योगिनी मेरे साथ कितने साल से, जयदेव मेरे साथ कितने साल से है, वो श्रीमान ज्ञानदेव जी महाराज, तुम 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में भी मेरी एक बार ट्रांसलेट कर लेते हो ठीक ठीक तो मुझे खुशी होती है, और वेणु सब बात ठीक ठीक ट्रांसलेट कर लेता. सिर्फ कमजोरी यहाँ पर है क्योंकि कर्म सारे करने पड़ते हैं ईगो को. वही वहां पर है अटेंडेंट की तरह, वहीं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है. धीरे धीरे कला आ जाएगी, आती गई है, आती गई है. और मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ करता ही नहीं. जब मैं करने की बात भी आप लोगों से कह रहा हूं तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूं. लेकिन एक बात साफ है कि मेरे संग साथ अगर तुम रहे तो कुछ हो सकता है. नहीं होता तो परमात्मा की मर्जी, हो जाता तो परमात्मा की मर्जी. मैं कोई क्रेडिट लेने वाला नहीं, ना लेता हूं. सारा क्रेडिट या तो परमात्मा का या मेरे गुरु का, ओशो का. बीच में इसलिए अच्छा है मेरे को देखो ही मत, सीधा उसी को देखो तो तुम्हारी प्रॉब्लम और कम हो जाएगी. Gurudev, only you can use your body or any other body or anything to see any manifestation. That process be termed as Nishkam Karma from the side of body. Any execution by ego cannot be Nishkam Karma. Is this understanding or misunderstanding, Gurudev? Gurudev, you are restlessly loving, compassionate Bhagwan. Bless ego with energy not to resist, blessed to receive your answer when desperately needed in this busy world. उसकी पीड़ा देखते हो, उसकी मेल्टिंग देखते हो, उसकी इनसाइट देखते हो. कैसे अभी सवेरे सवेरे मैं खिड़की में खड़ा था, अभी चाय आई नहीं थी, बाहर चाय आ गई. मनमोहन पहला व्यक्ति था वहां पर, उसने चाय ली, उसने मेरे को देख लिया मैं खिड़की में खड़ा हूं तो पूछता है क्या मैं मिल सकता हूं, कभी फुर्सत मिलेगी. मैंने कहा भी आ जा. आ गया. आया तो कोई प्रश्न है नहीं, है तो कैसे पूछूं ये समझ में नहीं आ रहा, या तो डर लग रहा है. भाई इतना ही कह पाए कि डिप्रेस्ड हूं, नर्वस हूं, कंफ्यूज हूं, समझ में नहीं आता. मैंने क्या समझना चाहते हो? कहते पता नहीं. मैंने कहा तुम बिल्कुल हिलो डुलो मत, तुम इसी स्थिति में बने रहो, कुछ मत करो. कंफ्यूज हो, ओके. नर्वस हो, ओके. डिप्रेस हो, ओके. इससे भागो मत. और यही बात तुमको दिन पहले से समझा रहा हूं. अब जिस दिन तुम्हारी समझ में आ जाए,
इतनी सी बात मैं समझा रहा हूं कि जो है उससे भागो मत। तुम जो है उससे भागते हो। अब आश्रम बन रहा है तो आश्रम से भाग रहे हो, आश्रम नहीं बनना तो आश्रम बनाने के लिए भाग रहे हो। अब आश्रम बन रहा है तो बनने दो, जेल आ रही है तो आने दो। अभी इस 65 साल की उम्र में शरीर जब बहुत उतर रहा है, अभी यहाँ पर हम कमरे में बैठते हैं, आप तो सब बहुत एनर्जेटिक लोग हो, काफ़ी एनर्जी है, और इतनी एनर्जी उड़ाते हो कि मेरी बॉडी झेल नहीं पाती। तो मैं जरा चला जाता हूँ बाहर या कभी लेट आता हूँ। अब मैं आपके साथ जब सूफी में आप नाच रहे हो, मैं बैठूंगा जरूरी नहीं है। अब मेरा शरीर उतनी ऊर्जा नहीं झेल पाता, तो मैं जाके कमरे में बैठ जाता हूँ। लेकिन आप देखते हो कि इस उम्र में अगर मेरे को आश्रम बनाना पड़े तो कितना काम है। सिर्फ पैसे की नहीं, और पैसे की तो मेरे को चिंता भी नहीं, काम कितना है, करेगा कौन, और कोई भी कैपेबल हम में से नहीं है। कितनी चीजें करनी होती हैं। अब कितना मटेरियल लगेगा, कितनी तरह का मटेरियल लगेगा, कितनी चॉइस करनी पड़ेगी, क्या क्या नहीं खरीदना पड़ेगा। फिर भी मैंने ना नहीं की, अच्छी तरह से जानते हुए कि ये मैं क्या कर रहा हूं। और इस एज में अब समय है जब मैं चुपचाप अपना जीऊं, 2 टाइम खाना मिल जाए, खाना भी मैं अपना बना लेता हूं, कोई नहीं हो तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है। चाय बना लेता हूँ, खाना बना लेता हूँ, आई एम नॉट डिपेंडेंट। लेकिन तुम सोचो कि अगर मैंने ये स्वीकार किया तो इसका मतलब क्या, और किसके लिए। मेरे साथ जुड़े रहने का कोई बहाना चाहिए, कोई एक्सक्यूज चाहिए। अगर तुम्हारे पास बहाना नहीं है तो मेरे साथ फिर तुम जुड़े नहीं रहते। कोई सेतु चाहिए, और वेणु को बहाना मिल गया सतत, इसलिए वो मेरे से जुड़ गया। मनीष मेरे साथ रहता है, योगिनी मेरे साथ रहती है, तो कोई बहाना है। नैना ने एक छोटा सा बहाना ढूंढ लिया, उसने मेरे को पूछा, गुरुदेव कभी कभी मैं यहाँ पर आ सकती हूँ गार्डन में काम करने। मैंने कहा ठीक है। मैंने कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं बताया कि तेरे को इतना करना ही है, तेरे को आना ही है। वो आती है, घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट काम करती है, कभी 2 दिन के बाद आती है, कभी 4 दिन के बाद आती है, कभी एक दिन छोड़ के आती है, जब उसको जितना अच्छा लगता है। लेकिन इसी बहाने वो जुड़ती चली गई। इतना सा बहाना। अब वो अगर गार्डन में काम नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है कि गार्डन कहीं भागा जा रहा है या गार्डन को बड़ी जरूरत है नैना की। नैना को जरूरत है गार्डन की। कोई बहाना, वे प्रताप से ना बैठे, वो मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भरते, एक बहाना बन गया उनको। उनको जब भी मिलना होता है, कई बार फोन मार के आते हैं, कहीं वैसे आ जाते हैं। अब ये उनको भी पता नहीं चलता होगा कि ये इसके पीछे भी कोई घटना घट रही है बड़ी, और पीछे हमेशा कोई बड़ी घटना घट रही है। तुम ऐसे ही मेरे साथ नहीं जुड़े, मैं ऐसे ही अचानक मैसूर में नहीं प्रकट हो गया। इसके पीछे कोई बड़ी अदृश्य रहस्यमय प्लानिंग है। वो क्या प्लानिंग है वो मैं भी नहीं जानता। उसमें मैं भी एक हिस्सेदार हूँ, तुम भी हिस्सेदार हो। तुम अपना एक्ट करो, मैं अपना एक्ट करूँ, बस इतना ही मैं समझता हूँ। तुम तुम्हारा रोल करो, मैं मेरा रोल करूँ, बस रोल करते करते एक दिन पर्दा गिर जाएगा, खेल खत्म, पैसा आ जाओ।
12th April. I am blind so that I not seeing what you are. और ये सारी अनुभूतियां उनकी निजी हैं, उनके अपने भीतर घटी हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अपने बारे में क्या कहूं, मैं खुद ही नहीं जानता। I live in a state of not knowing. So what I can say? मुझे अपने होने का बोध शिथिल होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। I am blind so that I not seeing what you are. I deaf and that is why I not listen what you really saying. I a fool so that I not know the value of living master. Oh my beloved, I helpless, only your blessing can make life meaningful. But I sure that the meeting of you itself is the proof of blessing. Gurudev, I feel that very division, outer and inner guru, is misleading. All is godly, nothing is godly. The one who realized, give this understanding constantly, help for realization of this is rare, visible of invisible, this proper. You take care of Vichar Shuddhi, Bhava Shuddhi on the foundation of this now. You are pouring emptiness except you, only nothing is important because you are the visible expression of nothing. Blessed to meet Chaitanya where you are glowing clearly and uninterruptedly, only you can take anyone to you. In that letter, पंक्ति थी, तुम मुझे प्रेम कर करके जलील करते हो, कि इतना प्रेम करते हो कि मैं अपमानित महसूस करता हूं। और मैं कई बार कह चुका हूं कि लोग प्रेम की तो तलाश में हैं, लेकिन प्रेम अगर मिले तो लेना महंगा पड़ता है। अब मैं भी क्या करूं, मैं उसको नाप तोल के नहीं दे सकता, हिसाब किताब करके नहीं दे सकता। अब तुमको अगर बर्दाश्त नहीं होता तो भाग जाओ, मत लो। कोई जबरदस्ती तो तुम्हारे झोले में डालता नहीं, झेलना तुम्हें सीखना पड़ेगा। वही बात वेणु कह रहे हैं। You started killing me even without information, waiting wholeheartedly to be killed completely. ऐसा ही होना चाहिए। मेरी अपनी यात्रा यही थी। मैं हर वक्त इस प्रार्थना में रहता था। उस वक्त ओशो को भगवान कहते थे, भगवान श्री रजनीश, कि मुझे छोड़ना मत, मुझे मिटा डालना, मुझे मार डालना। ये मेरी गुप्त प्रार्थना थी, मेरी यात्रा की। ठीक वही प्रार्थना तुम्हारे भीतर वेणु जन्मी है। तुम मेरी खुशी का ठिकाना नहीं समझ सकते। यही भाव, ये लगन है, ये प्यास है। और ये लगन, ये प्यास कोई किसी को दे नहीं सकता। किसी के पास है तो है, और जिसके पास है उसको एक दिन ये भी परवाह नहीं रहती कि वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ, क्या एनलाइटनमेंट मिली कि नहीं मिली, क्या हुआ क्या नहीं। वो इससे इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि झेला नहीं जाता। यही बहुत हो जाता है।
और एनलाइटनमेंट तो दौड़ी आती है, आके पाँव में झुकती है कि ये रही मैं। Gurudev, in Mysore camp, you advised the achieving mind to follow double arrow. But now you made all arrow disappear. All is in one pool and tools of one and only. मैंने उनको एक विधि बताई थी कि जब मान लो टीवी देख रहे हो, तो टीवी देखते वक्त तुम्हारी चेतना का तीर उस ओर होता है ना, ऐसा होता है, करेक्ट। तो मैंने कहा कि इस तीर को डबल कर लो, इधर भी कर लो, चेतना उधर भी जा रही है, उधर भी देख रहे हैं और देखने वाले को भी देख रहे हैं। मेक योर कॉन्शियसनेस, मेक योर सीइंग डबल एरो। और कुछ नहीं मैं बोला, लेकिन उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया और बिल्कुल ठीक है। ये लगन है, ये भक्ति है, मैं क्या करूं? मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी अपनी है। ऑल इज इन वन पोल, जैसे तुम डबल एरो हो जाओगे सब खो जाएगा, दोनों तरफ खो जाएगा, जो रह जाएगा उसकी व्याख्या करनी मुश्किल हो जाएगी। सब एरो खो गए और बड़ी जल्दी उन्होंने अब थोड़ा सा प्रयोग किया होगा, जब याद, तुम्हें याद नहीं आता, भूल जाते हो। अगर याद रहे और तुम करो तो थोड़ी देर लग सकती है, हो सकती है तुम्हारी डिग्री जरा कम हो, किसी की डिग्री थोड़ी ज्यादा हो, तो क्या फर्क पड़ता है? अब एक व्यक्ति बेंगलोर से मैसूर आता है और एक व्यक्ति पूना से मैसूर आता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति पूना में रहता है, एक व्यक्ति बेंगलोर में रहता है, और एक व्यक्ति मैसूर में ही रहता है, मैसूर से मैसूर में आता है, हो जाए। इसमें कंपेयर करने की क्या जरूरत है? ऐसा है। But now you made all arrow disappear. All is in one pool and tools of one and only. O Gurudev, you never miss me, but I miss you. You never need me, but without you, how I can? But I very sure whatever you do, it is blessing aimed at my ultimate good. मेरे प्यारे, तुम्हें लगेगा और शायद ये ठीक भी ना हो, लेकिन मैं कहूंगा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं कहूंगा। बड़ी साधना के बाद ऐसी दृष्टि मिलती है, बहुत मेहनत के बाद, और वो भी लगन से अगर की। आई वॉज नॉट माई सेल्फ सो फास्ट। What I am praising may harm him, but he should go to the test. He should pass this test too. प्रशंसा बड़ी खतरनाक होती है, हालांकि हम सब चाहते हैं कि हमारी हो, नहीं चाहते, लेकिन ऐसा है। हकीकत यह है, मैं भले ना कहूं, मैं खुद ग्रेटफुल महसूस करता हूं जब इस तरह के मित्र मिले, तो फिर जर्नी थोड़ी आनंदपूर्ण हो जाती है, स्वादपूर्ण हो जाती है। मंजिल की फिर किसको परवाह, फिर तो चलने का ही मजा आता है, पहुंचने की चिंता किसको? क्योंकि पहुंच गए तो फिर तो बिस्तर लगाना पड़ेगा ना। चलने में मजा कुछ और है, डबली बजाए, अपना गाना गाए, मस्ती मारते, कहीं पकोड़े खाए, कहीं कोको कोला पिया, कहीं ढाबे में चले गए। बहुत है अभी, नहीं पड़ता। वापस प्रश्न पे आता हूं। बट ही हैड गॉट रिप्लाई, मीन्स हाँ जी गॉट रिप्लाई बाई वेणु
Why one wants to become prisoner of an institution? देखो मेरे प्यारे, मैं तुम्हें कैदी नहीं बनाने वाला। हकीकत यह है कि जब तुम काम मांगने आओगे तो मैं सोचूंगा कि तुम्हें काम दूं कि नहीं दूं। अभी कुछ छोटा सा एक अनुभव कई मित्रों ने लिया है कि जाके वहां पर 2-4 घंटे काम करते हैं। कैसा लग रहा है? तुमको लग रहा है कि तुम कैद में हो? तुमको वहां पर एक धेला वहां पर मिलने वाला नहीं है। और अगर तुम वहां पर रहना चाहते हो तो तुमको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया, जैसी तुम्हारी जेब होगी वैसे काट दूंगा। सबसे बराबर पैसे नहीं लूंगा। जिसके पास ज्यादा है उससे ज्यादा लूंगा, जिसके पास कम है उससे कम लूंगा। और हो सकता है किसी किसी को सामने से दे भी दूं, हो जाए। अब किसी की जरूरत ऐसी है कि उसको दे भी दूंगा। और तब भी तुम्हें इतना अच्छा लगेगा वहां काम करना कि जहां तुम्हें लंबी तनख्वाह मिलती है वहां तुम नहीं टिकना चाहोगे, तुम यहां भागोगे। अभी भी भागते हो, भागती है ना? बट आई डोंट वांट टू मेक यू, आई डोंट वांट टू क्रिपल यू। यू आर यंग, आई कैन अंडरस्टैंड, and you are growing in many, many ways in your trust, in your love, in your meditation. But it is not time for you. अभी थोड़ा तपना है। ऐसे मैं ले लूं तो तुम अभी यंग हो, अभी तुमने जीवन जिया नहीं, जीवन देखा नहीं। अम्बिशन है कई तरह के, कई तरह की इच्छाएं हैं। तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं ज्यादा जिम्मेदारी फील करता हूँ। तुम्हारे भीतर तो एक अपेक्षा होती है, एक मांग होती है, एक छोटी सी फीलिंग होती है, मैं कर सकता हूँ पूरी। पर वो तुम्हारे अगेंस्ट चली जाए ये मकसद नहीं है। कोई पीड़ा भी तुम्हारे हित में जाए वही मुझे करना होगा। तुम्हें थोड़ी तकलीफ हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, असहनीय हो, अच्छा वातावरण नहीं हो, लेकिन तुम्हारे हित में हो तो मुझे वो तुम्हारे लिए वही स्वीकार करना पड़ेगा। But Gurudev, don't you feel that Hanji is in a prison of institution of society? You are right, Hanji. Not only society. Society is not outside. Society is sitting inside and guarding you and dominating you and using you. You are you are saying right. You are already prisoner. Now you see, I don't live in society. I am out of society. Until now, I lived in the society. And again, I am in the society. Don't you think this is society? This is more bothering society than the other, you people. Isn't it? You bother me more. अब आगे पवन मल्होत्रा जी, क्या नाम है इनका, प्रकाश मल्होत्रा, क्या कवि, ऐसे ही कुछ करने में ये है, वो ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है, फलाना ऐसा है, या तो निंदा में लगे हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ की। वेरी वेरी रेयर यू हैव समथिंग रियली टू आस्क। और मेरे को अच्छा लगता है जब तुम सच में पूछते हो, लेकिन तब ये होना चाहिए कि जो कहा जाए उसको करो, फिर परिणाम देखो। मैं तो ऐसा कोई जोर नहीं दे रहा कि मेरी बात मानो,
यहां पर एक लड़की है, मेरे जीवन में अभी तक जितने भी लोग आए, उसने जब जो पूछा है वो ऐसे आलतू फालतू पूछती भी नहीं। मैंने जो कहा है फिर उसने वैसा ही किया, और सारे तीर निशाने पे लगते चले गए, एकदम फिट एंड हिट। तो उससे मुझे भी खुशी होती है, और वो भी ये समझती है, तुम अगर बिना पूछे तुम्हारा काम चलता है तो इट इज वेरी फाइन, इट इज ब्यूटीफुल। आई डोंट कम एंड इंटरफियर कि ऐसा करो या वैसा करो। ना करता हूं क्या कोई भी कि ऐसा क्यों किया। अब वेणुगोपाल ने नौकरी छोड़ दी, तो मैंने ये कहा कि क्यों छोड़ दी या नहीं छोड़नी चाहिए थी, उनकी मर्जी में आया, उन्होंने छोड़ दी, सो ठीक है। लेकिन जब तुम कुछ बात पूछते हो तो फिर थोड़ा करके देखो। कई मित्र हैं, ये 3 मित्र तो बैठे हैं, भक्ति भाव आया नहीं, बोला बैठा है, मनमोहन, बहुत जुड़े हुए हैं। They are not able to follow my advice. They are quite sufficient to follow themselves, and I am happy. To me, it is happy. मेरे लिए कोई झंझट की बात नहीं है। लेकिन नए काम में, आश्रम का जैसे अगर मान लो काम चालू होता है, तो वही लोग उसमें जुड़ पाएंगे जो उसको डिजर्व करते हैं। सोसाइटी में हो, परिवार में हो, किसी पत्नी के साथ हो, पति के साथ हो, जेल में हम हैं, लेकिन जेल से निकलने की अभीप्सा या आकांक्षा बहुत कम लोगों को होती है। दे आर वेरी रेयर पीपल। समझो कि एक जेल है, उस जेल में बहुत सारे कैदी हैं। अब कैदी वहां पर जो होते हैं, सबके भीतर भागने की, जेल से बाहर होने की इच्छा नहीं होती। ऐसे फंस गए, अब कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती, और उनको बार बार एक ही विचार हो कि कैसे यहां से भागे। तो जेल से अगर निकलना हो तो पहली बात तो ये है कि जेल में कुछ ऐसे संगी साथी होने चाहिए जो तुम्हारे साथ बाहर निकलने को तैयार हो, और उनके भीतर भी वही प्यास। ये अकेले का काम नहीं है, अकेले तुम कभी जेल से बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी बात, किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय होना चाहिए जो जेल में रह चुका है लेकिन जेल के बाहर है। अब ये दूसरी बात, जो ये जानता है कि जेल की दीवार कहाँ कहाँ है, कितनी कितनी ऊंची है, कहाँ कहाँ सिपाही बैठ है, कब कब उसको नींद आ जाती है, कब लाइट गुल हो जाती है, कहाँ से रास्ता है, कहाँ से भागा जा सकता है, जो ये सब जानता है, जो जेल का पूरा मैप जानता है। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि वो तुम्हारी हेल्प करने को भी तैयार हो। तुम हेल्प लेना चाहते हो, वो हेल्प देना चाहते हैं, अगर ये बात मेल खा जाए। अंतिम बात, जेल में बैठा कैदी जो बाहर निकलने की अभीप्सा करता है, ठीक वैसा ही करेगा जैसा उसका बाहर का गाइड उसको बताएगा, अपनी बीच में नहीं चलाएगा। और सारे ग्रुप को वही करना पड़ेगा जो उसे कहा गया है। अगर ग्रुप में ग्रुप हो गए, 4-6 ग्रुप हो गए, कोई कुछ करना चाहता, कोई कुछ कर, तो सारे पकड़े जाओगे वापस, वापस और बुरी तरह से जेल में ठूस दिए जाओगे। अगर ठीक ठीक वैसा ही किया
जैसा सूचना दी गई है, अगर वही टूल इस्तेमाल किए गए जो तुम्हें गुप्त तरीके से पहुंचाए गए हैं, अगर तुमने वही खुदाई की जहां पर तुम्हें कहा गया खुदाई करने के लिए, उसी टाइम की जो टाइम दिया गया है, पूरा कोऑपरेशन किया बाहर के गाइड को, तो संभावना है कि तुम जेल से भागने में सफल हो जाओ। एक एक व्यक्ति लड़के समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये जो सामाजिक कैद की तुम बात करते हो, तो एक ऐसा ग्रुप चाहिए जिस सब के भीतर उस समाज की कैद से छूटने की भावना हो। एक गाइड चाहिए जो इस सब को भोग चुका है, अब इसके बाहर है। उसी को हम गुरु कहते हैं, उसी को हम मास्टर कहते हैं, इसको हम संघ कहते हैं। ये सब बातों का मेल हो तो ही व्यक्ति जेल से बाहर हो पाता है, अन्यथा वो उसी में घूमता रहता है। सोसाइटी में हो, परिवार में हो, किसी पत्नी के साथ हो, पति के साथ हो, जेल में तो हम हैं, लेकिन जेल से निकलने की अभीप्सा या आकांक्षा बहुत कम लोगों को होती है। दे आर वेरी रेयर पीपल। समझो कि एक जेल है, उस जेल में बहुत सारे कैदी हैं। अब कैदी वहां पर जो होते हैं, सबके भीतर भागने की, जेल से बाहर होने की इच्छा नहीं होती। ऐसे फंस गए, अब कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती और उनको बार बार एक ही विचार हो कि कैसे यहां से भागे। तो जेल से अगर निकलना हो तो पहली बात तो ये है कि जेल में कुछ ऐसे संगी साथी होने चाहिए जो तुम्हारे साथ बाहर निकलने को तैयार हों, और उनके भीतर भी वही प्यास। ये अकेले का काम नहीं है, अकेले तुम कभी जेल से बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी बात, किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय होना चाहिए जो जेल में रह चुका है लेकिन जेल के बाहर है अब। ये दूसरी बात, जो ये जानता है कि जेल की दीवार कहाँ कहाँ है, कितनी कितनी ऊंची है, कहाँ कहाँ सिपाही बैठ है, कब कब उसको नींद आ जाती है, कब लाइट गुल हो जाती है, कहाँ से रास्ता है, कहाँ से भागा जा सकता है, जो ये सब जानता है, जो जेल का पूरा मैप जानता है। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि वो तुम्हारी हेल्प करने को भी तैयार हो। तुम हेल्प लेना चाहते हो, वो हेल्प देना चाहते हैं, अगर ये बात मेल खा जाए। अंतिम बात, जेल में बैठा कैदी जो बाहर निकलने की अभीप्सा करता है, ठीक वैसा ही करेगा जैसा उसका बाहर का गाइड उसको बताएगा, अपनी बीच में नहीं चलाएगा। और सारे ग्रुप को वही करना पड़ेगा जो उसे कहा गया है। अगर ग्रुप में ग्रुप हो गए, 4-6 ग्रुप हो गए, कोई कुछ करना चाहता, कोई कुछ कर, तो सारे पकड़े जाओगे वापस, वापस और बुरी तरह से जेल में ठूस दिए जाओगे। अगर ठीक ठीक वैसा ही किया जैसा सूचना दी गई है, अगर वही टूल इस्तेमाल किए गए जो तुम्हें गुप्त तरीके से पहुंचाए गए हैं, अगर तुमने वही खुदाई की जहां पर तुम्हें कहा गया खुदाई करने के लिए, उसी टाइम की जो टाइम दिया गया है, पूरा कोऑपरेशन किया बाहर के गाइड को, तो संभावना है कि तुम जेल से भागने में सफल हो जाओ। एक एक व्यक्ति लड़के समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये जो सामाजिक कैद की तुम बात करते हो, तो एक ऐसा ग्रुप चाहिए जिस सब के भीतर उस समाज की कैद से छूटने की भावना हो।
एक गाइड चाहिए जो इस सब को भोग चुका है, अब इसके बाहर है। उसी को हम गुरु कहते हैं, उसी को हम मास्टर कहते हैं, इसको हम संग कहते हैं। ये सब बातों का मेल हो तो ही व्यक्ति जेल से बाहर हो पाता है, अन्यथा वो उसी में घूमता रहता है।